Yes. Good morning, everyone. Am I audible? Good morning, sir. Yes, sir. Morning, sir. Good morning. Good morning. Okay. So today we are going to start another chapter of the spring, that is leaf spring. So first we will understand the common key terms and terminology and construction of the leaf spring. So let's first discuss the construction. So the shape is somewhat elliptical in nature. Shape is somewhat elliptical in nature. So this is a elliptical, and this portion is made somewhat in the bent in the form of eyes. So this is eye. This is left eye, and this is right eye. This is left eye. So this left eye and right eye are joined with the chassis of the automobile. Now they are connected with the chassis of the automobile. So left eye and right eye are connected with chassis to the bolt arrangement or anything else. This is the central part. So this central part is in contact with the axle of the automobile. This is in contact with the axle of the automobile. Below this leaf, in which eyes are made, left eye and right eye, this leaf is known as master leaf. This leaf is known as master leaf. Below this leaf, there is another leaf which is also elliptical in nature. So this is leaf below the master leaf, and this leaf is known as full length leaf. This is known as full length leaf because its length is equal to the length of master leaf. So that's why it is full length leaf. How many leaves we have to use? That depends on the design. हम ही कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितनी लीफ लगाने से हमें प्रॉपर स्ट्रेस है ना विद इन लिमिट मिल जाएगा, प्रॉपर डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, है ना. तो लीफ स्प्रिंग्स आर यूज्ड इन सस्पेंशन सिस्टम ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, है ना. इन ट्रक्स, बसेस, कार्स, लीफ स्प्रिंग्स आर यूज्ड. So what is happening? At the top there is a master leaf. Below the master leaf there is a full length leaf. Full length leaves may be 1, 2, 3, any number of, but master leaf will be only one, in which eyes are made. Eyes are connected with the chassis. Below this full length leaf, there is another leaf whose length is slightly less. Whose length is slightly less than the full length leaf or the master leaf. So this is the length. So length between this eye and this eye. This is the span. This is the span. So the gap or the span between the left eye and right eye is generally taken as 2L. It is generally taken as 2L. So 2L is the span. So I am writing 2L is the distance between eyes, between left eye and the right eye. Below this leaf whose length is smaller than the full length leaf, this leaf is known as graduated length leaf or graduated leaf. It is graduated length leaf. Graduated length leaf. Again, there is a graduated length leaf whose length is again small. Then again, then. So the structure is somewhat master length leaf, full length leaf, graduated leaf 1.
So this is master leaf. I can say it is M part, master leaf. It is full length leaf, so it is F. Graduated leaf 1, graduated leaf 2, graduated leaf 3, and so on. ठीक है, फुल लेंथ लीफ भी F1, F2, F3 हो सकती है, बट जनरल जो कंस्ट्रक्शन है वो इसी तरह का है. Lengths are reducing. So at the central part, this central part is connected with the U bolts. This central part is connected with the U bolt. This is the central clip, or it is connected with the U bolt for the grip purpose. The grip is provided with the help of U bolt. All the leaves are connected with U bolt at the center, and center is attached with the axle of the automobile. Axle is moving as per the road conditions. Whatever the road conditions, it is moving. On the roads there are up and downs, ridge and valleys. So this part is getting the jerks of the roads. रोड्स के जितने भी जर्क्स हैं वो एक्सल क्या कर रहा है, उसको रिसीव कर रहे हैं. फ्रॉम एक्सल द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द लीव्स, देन द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द चेसिस, है ना. सो बिकॉज स्प्रिंग इज एन इलास्टिक एलिमेंट, it absorbs energy. So the total energy, some part of the energy is absorbed by the spring and some part is transferred to chassis. Some part is transferred to chassis. तो हमको वो सस्पेंशन सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो हमको यहाँ पे रिसीव हो जाता है ना. मान लीजिए बीच में लीफ स्प्रिंग नहीं है तो क्या होगा, टोटल एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड टू चेसिस, है ना. तो उसमें कंफर्ट नहीं आएगा, है ना. ऑटोमोबाइल में जो भी लोग बैठे होंगे, as per road condition, they will not feel comfort. But when we are using leaf springs, so some part of energy is absorbed here and remaining part is transferred to chassis. So this is the construction. So यहाँ पर कुछ कीवर्ड लिख लेते हैं हम, जैसे 12 is the distance between eyes, NF, it is the number of full length leaf, NF is the number of full length leaf, NG is the number of graduated length leaf, graduated length leaf, leaves, and N is the total numbers, so it is NF plus NF. Total leaves are NF plus NG. NG is the number of graduated length leaves along with master leaf. मास्टर लीफ को भी हम इसी में इंक्लूड कर लेंगे. मतलब ये हम समझिएगा कि मास्टर लीफ कहाँ रह गई, है ना. मास्टर लीफ इज, अभी समझ में आ जाएगा जब हम डिराइव करेंगे. मास्टर लीफ इज इंक्लूडेड इन नंबर ऑफ ग्रेजुएटेड लीव्स, उसके अंदर वो इंक्लूडेड है. ठीक है. सो टोटल लीव्स आर NF प्लस. लेट axle is giving some force, है ना. The springs are receiving some force from at this central part. So let this force is 2p. ठीक है. Force is 2p. Force को मैं p भी मान सकता हूँ, बट मैं 2p ले रहा हूँ किसी रीजन की वजह से. इस लेंथ को मैं l भी मान सकता हूँ, बट मैं किसी रीजन की वजह से 2l ले रहा हूँ, है ना. क्योंकि कहीं पे मुझे हाफ ऑफ करना हुआ तो ll हो जाएगा, इसका यदि हाफ ऑफ करना हुआ तो pp हो जाएगा. अदरवाइज वो p/2 में जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी बस, है ना. सो रीजन ऑफ टेकिंग 2p and 2l इज वेरी क्लियर, है ना. कुछ इजीनेस की वजह से हम लोग लेंगे. सो दिस फोर्स इज 2p. सो ड्यू टू दिस फोर्स द आईज विल गिव द रिएक्शन. Eyes will give the reaction. So reaction will be here. So this is reaction P and this is reaction P. है ना. यदि मैं इसको P assume करूंगा, then reactions are P/2 and P/2. So total force is 2P. That's why the reactions are P and P, है ना. Because it is somewhat working as a simply supported beam. तो as a middle point पे कोई load है तो reactions half हो जाती हैं. So reaction part is P. Here
again there is some clip. So this clip is known as rebound clip. This clip is known as rebound clip. This clip is known as rebound clip. This clip is used left side also, on the right side also. So there are two clips, two rebound clips. So this is also rebound clip. This is left rebound clip. This is right rebound clip. है ना? तो इनका पर्पस क्या है? During action, there should not be literal shifting of these leaves. ये leaf एक दूसरे पे literal shifting ना करे, है ना? That's why for the gripping purpose we are providing these clips over here. So this is left rebound clip, right rebound clip, central bolt, है ना? Central bolt, master leaf, full length leaf, diluted length leaf, eyes, NF, number of full length leaf, and the number of diluted length leaves, including the master leaf, including the master leaf, and N is the total number of leaves. ठीक है? 2B is the force coming on axle. ठीक है? P is the force reaction given by the chassis. P is the force reaction given by the chassis. So this, यदि मैं इस पूरे इलेक्ट्रिकल फॉर्म को, है ना, मैं देखूं तो ये यू बोल्ट की वजह से यहाँ पर एक तरह से फिक्स्ड की तरह बिहेव कर रहा है. इस यू बोल्ट की वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर बीच में क्या किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इट इज फिक्स्ड समवेयर, है ना, इट इज फिक्स्ड. तो यदि मैं इसका राइट पार्ट कंसीडर करूं, राइट पार्ट, सो दिस राइट पार्ट इज बिहेविंग लाइक ए कैंटिलीवर, बिहेविंग लाइक ए कैंटिलीवर. तो कैंटिलीवर आपने देखा ये एक पार्ट फिक्स होता है और दूसरी तरफ सम फोर्स आता है ना. तो मैं यदि ऐसे देखूं तो दिस पार्ट इज फिक्स्ड, द फोर्स इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन. So this right part is working as a cantilever. Similarly, the left part is also working as a cantilever. है ना? Left part is also working as a cantilever. Right part is also working as a cantilever. So we will analyze only one part. है ना? दोनों का नेचर सेम है. तो हम किसी एक पार्ट को ही स्टडी करेंगे, है ना? So we are studying the right part. So right part is behaving like a cantilever. ठीक है? तो अब राइट पार्ट पे यदि हम फोकस करें तो राइट पार्ट में फोर्स कितना आ रहा है? P. P is the force coming on at free end पे है, या फिर वो I ले सकते हैं, है ना? फोर्स कमिंग एट फ्री एंड. तो P हो गया, है ना? यदि मैंने इस फोर्स को P लिया होता तो ये P/2 हो जाता. आप समझ में आ गया P2P क्यों लिया? हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी को इजी कर देते हैं बस उसके लिए. अब टोटल पार्ट की लेंथ कितनी है? 2L. सो इस पार्ट की लेंथ क्या हो जाएगी? ओनली. सो द लेंथ ऑफ आवर कैंटिलीवर इज L. सो L इज लेंथ ऑफ कैंटिलीवर. ठीक है? कैंटिलीवर पार्ट. तो अब हमारी कैलकुलेशन में P यूज होगा, L यूज होगा, 2L और 2P का कंसेप्ट खत्म हो गया क्योंकि हमने हाफ कर दिया उसको, है ना. तो हमारी कैलकुलेशंस में L और P यूज होगा. हाँ, ये 2P चल रहा है फोर्स, तो ये तो फिक्स पार्ट है, इसकी वजह से रिएक्शंस आ रही हैं. ठीक है? तो ये रिएक्शन वाला पार्ट हाफ ऑफ 2P. सो दिस इज P. तो अब हमारे लिए कैंटिलीवर पे कितना फोर्स आ रहा है? कैंटिलीवर के फ्री एंड पे P फोर्स. हाँ, वो उसको कंसीडर करें. ठीक है? तो आप इसका चाहे तो फिक्स ले लें, मैं ऐसे रब करूंगा, है ना. कंस्ट्रक्शन वर्किंग हमको समझ में आ गई लीफ स्प्रिट का, है ना. तो हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू हियरिंग मी? Yes, sir. तो कैन आई रब द बोर्ड? Yes, sir. Ballu. चलिए अब देख लेते हैं. ये मेरा सेंट्रल पार्ट फिक्स्ड है. उसके बाद मैं ले लेता हूं लीफ
ठीक है, लीफ का क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर इन नेचर। लीफ कैसी है, रेक्टेंगुलर इन नेचर, क्रॉस सेक्शन जो है उसका रेक्टेंगुलर, लेंथ उसकी एल है, लेंथ कितनी है एल, बट इसका एक क्रॉस सेक्शन देखेंगे कहीं पर, वो क्रॉस सेक्शन मुझे दिख रहा है b by t, b is the width of the cross section and t is the thickness of the leaf or thickness of the cross section, ठीक है, b is the width of the leaf, t is the thickness of the leaf, l is the length of leaf, ठीक है, length, total length is 2l but in our calculation purpose it is l, तो 3 पैरामीटर l b t बहुत ही क्लियर होने चाहिए, l is the length, b is the width, t is the thickness. So now what will be the moment of inertia of rectangular cross section, everybody knows bh cube by 12, पढ़ा है ना, Yes sir, BDQ है 12. हाँ, तो यहाँ पे h की जगह t है, so moment of inertia of this cross section will be bt2 by 12. now because it is a cantilever, it is in the form of a cantilever, cantilever is under bending stresses and bending stress is given by my over I from the bending equation, it is my over I, where m is the moment, y is the distance from the neutral axis, top fiber distance from the neutral axis or the bottom fiber distance from the neutral axis. So this is the neutral axis. So from neutral axis, the top fiber is at a distance of t by 2. The top fiber is at a distance of t by 2. Total thickness is t. It is t by 2. So in place of y, we will use t by 2. The moment is force multiplied by distance. Force multiplied by distance. So force is p. Force is p. And the distance is L. सबसे ज्यादा मूवमेंट कहाँ होता है कैंटिलीवर में, फिक्स्ड है, फ्री नहीं, फ्री नहीं, फ्री पे तो जीरो होता है, फ्री पे तो फिक्स एंड पे होता है सर, जहाँ पे एंड्स दोनों फिक्स मूवमेंट होता है ना, फ्री एंड का मूवमेंट तो जीरो हो जाता है क्योंकि p मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जीरो हो गई ना इस पॉइंट p, इसलिए जीरो हो गया है ना, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा, यहाँ और ज्यादा ज्यादा ज्यादा, सबसे ज्यादा होगा फिक्स्ड एंड, क्योंकि वहां सबसे जहाँ ज्यादा पे सर फिक्स होगा, ठीक है ना, फिक्स्ड एंड पे सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है, तो ये मूवमेंट हम जो निकालेंगे वो इसी पॉइंट का मूवमेंट निकालेंगे, ठीक है, मैक्सिमम वाला, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा p इंटू एल, p इंटू एल, मतलब ऐसे कंसेप्ट चलेगा। अब देखो लीव्स बहुत सारी हैं, पहले कौन सी लीफ है, मास्टर, ठीक है, मास्टर के बाद कौन सी लीफ है, फुल लेंथ, है ना, फुल लेंथ के बाद कौन सी है, ग्रेजुएटेड, फिर ग्रेजुएटेड, फिर ग्रेजुएटेड, लाइक स्ट्रक्चर ऐसा, ठीक है। अब ये जो फोर्स आ रहा है P, ये P कौन सी लीफ पे आ रहा है, फुल पे आ रहा है, ग्रेजुएटेड पे आ रहा है, मास्टर पे आ रहा है, कौन सी लीफ पे फोर्स आ रहा है, मास्टर पे, सर पहली वाली पे आ रहा है सर, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते आप, किस पे आ रहा है सर, सब पे है। फोर्स इज टेकन बाय ऑल द लीव्स, उसको बियर तो सारी लीव्स कर रही है ना, लेकिन किस रेशियो में कर रही है, वी डोंट नो, है ना, हो सकता आधा आधा कर रही है, आधा फुल लेंथ ले रही है, आधा ग्रेजुएटेड ले रही है, या 60-40, क्या क्या डिवीजन है आपस में, वी डोंट नो, दैट डिवीजन वी डोंट नो, है ना, तो वी अज्यूम दिस फोर्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन पार्ट which is taken by the full length leaves and one part which is taken by the graduated length leaves. So यहाँ पर फोर्स के दो पार्ट हो गए, एक पार्ट हो गया PF और एक पार्ट हो गया PG, F for full, G for graduated. So total force is divided into PF and PG, ठीक है। तो अभी मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है ये मैंने फुल लेंथ लीफ का बनाया है, तो मैंने इसको कर दिया PF, मैं PF हो गया मेरे फोर्स, है ना, तो PF इज द फोर्स टेकन बाय द फुल लेंथ लीफ, तो लिख लेते हैं PF is the force taken by full length leaves. Full length leaves. Similarly, PG taken by graduated length leaves. Only the one part will change. Graduated
लेंथ लीव्स। सर कॉर्नर में दिख नहीं रहा, उधर मत दिख। ये नहीं दिख रहा है वाला पार्ट? सर वो बस पीजी और पीएफ नहीं दिखा। अच्छा अच्छा, तो चलो मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, है ना, पीएफ एंड पीजी। ये क्या होगा? पीएफ फोर्स टेकन बाय फुल लेंथ लीव, पीजी फोर्स टेकन बाय ग्रेजुएटेड लेंथ लीव। तो अभी हम फुल लेंथ लीव पे बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए फोर्स हो गया पीएफ, डिस्टेंस हो गई एल, डिस्टेंस हो गई एल, वाई हो गया टी/2, वाई हो गया टी/2, इनर्शिया कितना हो गया? हाँ कितना हो गया? BT³/12, BT³/12 इनर्शिया जब हुआ जब तो एक इसमें था ना वो तो सर। जब एक फुल लेंथ लीफ है, लेकिन हमने तो फुल लेंथ लीफ कितनी अज्यूम करी है? NF इज द नंबर ऑफ फुल लेंथ लीव्स, ठीक है? मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे केस में जो इनर्शिया होगा वो हो जाएगा NF मल्टीप्लाइड बाय B। जो विड्थ B है वो B की जगह कितनी हो जाएगी? NF into B, NF into B, this is the width multiplied by T³ divided by 12, BT³/12, बस B की जगह पर NFB हो जाएगा, so it is NFB into T³ divided by 12। अब देखिए 2 से ये 6 टाइम्स कट गया, ठीक है, और एक t कैंसिल हो जाएगा तो t² बचेगा, तो फाइनली इट विल बी 6 टाइम्स TFL divided by NFBT². So this is the bending stress in the full length leaf. This is the bending stress in the full length leaf. तो इसको हम बोल सकते हैं सिग्मा F। ज्यादा बढ़िया एब्रिविएशन क्या हो जाएगा? It is the stress, bending stress developed in full length leaves. Correct? Similarly, the bending stress developed in the graduated length leaves, bending stress developed in the graduated length leaves, तो फॉर्मूला वही रहेगा My/I। अब हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाएगा, है ना? इतना नोट करिए आप पहले, तब हम ग्रेजुएटेड लेंथ लीव पे बात करें। तो हमने बेंडिंग स्ट्रेस इन द फुल लेंथ लीफ निकाला, ठीक है? अब देखो, ड्यू टू दिस फोर्स, दिस इज द स्ट्रेस डेवलप्ड, ठीक है? ड्यू टू दिस फोर्स देयर विल बी सम डिफ्लेक्शन इन द कैंटिलीवर। कैंटिलीवर डिफ्लेक्शन के बाद कैसा हो जाता है? जैसे पहले स्ट्रेट है तो बाद में वो कुछ ऐसे नहीं हो जाता है? यस। सो दिस इज द डिफ्लेक्शन। So what is the deflection we are getting? That deflection is delta F. Deflection is delta F, ठीक है? तो कैंटिलीवर में कितना डिफ्लेक्शन मिलता है? फॉर्मूला याद है? जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे होंगे उस वक्त आपने डिफ्लेक्शन के फॉर्मूलेज आते हैं, है ना? एक चैप्टर होता है पूरा डिफ्लेक्शन का, अलग अलग केसेस में। तो इन द केस ऑफ कैंटिलीवर द डिफ्लेक्शन इज गिवन बाय फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ divided by 3EI, divided by 3EI. This is the formula, ये याद रखना है आपको, है ना? इसका डेरिवेशन है बकायदा, बट अभी हम उसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो उसको बस हम यहाँ यूज कर ले रहे हैं कि डिफ्लेक्शन इन द कैंटिलीवर बीम इज गिवन बाय PL³ divided by 3EI, ठीक है? अब यहाँ पे फोर्स हमारा कितना है? E तो नहीं है, PF है। फोर्स हमारा कितना है? PF, तो हम इसको PF कर देते हैं। लेंथ हमारी कितनी है? L, तो लेंथ कोई चेंज नहीं है। E is Young's modulus, Young's modulus इनर्शिया, है ना? तो जरा सा पुट करिए,
तो ये वैल्यूज हो जाएंगी देखो आपकी पी एफ एल क्यूब डिवाइडेड बाय 3EI हमारा कितना था NF इंटू पी, NF इंटू पी इंटू टी क्यूब अपॉन 12। 12 ऊपर चला जाएगा। प्रिंस भाई जग जा। 3EI है ना, PF L क्यूब डिवाइडेड बाय 3EI हो गया पूरा, है ना। ये y तो उसमें आता है बेंडिंग स्ट्रेस, इसमें कोई y नहीं आएगा। सो दिस इज 3 4 जा 12 है ना, 3 4 जा 12, तो 4F L क्यूब 4PF L क्यूब डिवाइडेड बाय 3 तो कैंसिल हो गया, EBT क्यूब सर जैसे ENFBTQ। हाँ ENF BT क्यूब ऐसा बोल सकते हैं, ENF BT। तो ये हमारा डिफ्लेक्शन है। तो कंसेप्ट क्या चल रहा है, पहले हम फुल लेंथ पे काम कर रहे हैं, उनका हमने फोर्स अज्यूम कर लिया है PF, दोनों का फोर्स अलग अलग है। जो काम हमने फुल लेंथ पे किया है वही वर्क हम करेंगे ग्रेजुएटेड पर, ठीक है, ग्रेजुएटेड पे काम करेंगे। तो चलिए ग्रेजुएटेड पे काम करते हैं ना। मैं अब इसको मिटा दे रहा हूं, बस आप ये फॉर्मूले याद रखिएगा, ये वाला और ये वाला, ये भी आपके काम में आएंगे, है ना। तो अब हम जो काम करने वाले हैं वो अब हम करेंगे ग्रेजुएटेड लीफ पर। ग्रेजुएटेड लीफ का बना लेते हैं डायग्राम, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए ग्रेजुएटेड लीफ, अब हम ग्रेजुएटेड लीफ पे काम कर रहे हैं, उसका स्ट्रेस निकालेंगे और उसका डिफ्लेक्शन निकालेंगे। तो चलो सबसे पहले स्ट्रेस को ना क्या नाम देंगे हम, सिग्मा जी। सिग्मा जी इज गिवन बाय मोमेंट y अपॉन i, सेम फॉर्मूला। मोमेंट कितना हो जाएगा, pg फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस pgl, जैसे उसमें pfl हो गया तो यहाँ pgl हो जाएगा। y कितना हो जाएगा t/2, y will also be t/2, और इनर्शिया कितना हो जाएगा ngb into t cube divided by 12। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 6 pgl divided by ngbt स्क्वायर। देखो नेचर सेम आ गया, यहाँ 6 pfl आया और यहाँ 6 pgl, तो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस इन द ग्रेजुएटेड लीफ निकल गया। अब डिफ्लेक्शन निकालो, डेल्टा जी। डेल्टा जी का क्या फॉर्मूला होगा, हाँ पहले क्या था PL क्यूब बाई 3EI, अब क्या होगा, सेम रहेगा, नहीं सेम नहीं रहेगा, कारण बताइए उसका सेम क्यों नहीं रहेगा, बिकॉज देखिए इसका कारण समझिएगा। पहले हमारा क्या हो रहा था, एक फुल लेंथ लीफ थी, ठीक है, एक फुल लेंथ लीफ थी, उसकी थिकनेस कितनी थी T, और इस पर फोर्स कितना आ रहा था PF। पहले ये स्ट्रक्चर था, ठीक है, इसमें हमको क्या दिख रहा है, थिकनेस दिख रही है और लेंथ दिख रही है, ठीक है। एक ऐसा डायग्राम बना रहा हूं जिसमें मुझे लेंथ दिख रही है और विड्थ दिख रही है। अब इस डस्टर को देखो, लेंथ दिख रही है और थिकनेस दिख रही है, अब घुमा दिया तो लेंथ दिख रही है और विड्थ दिख रही है कि नहीं। डस्टर को आप देखें, सामने से लेंथ दिख रही है और थिकनेस दिख रही है, उसको रोटेट कर दिया तो लेंथ दिख रही है और विड्थ दिख रही है ना। ये दो डायग्राम समझ लीजिए, एक में लेंथ और थिकनेस है और एक में लेंथ और विड्थ है, ठीक है। थिकनेस कितनी है T, विड्थ कितनी है B, ये एक फुल लेंथ की बात होगी। अब दूसरी फुल लेंथ लीफ इसकी जस्ट ऊपर है, कहां पर है, इसके जस्ट ऊपर है कि नहीं है, तो थिकनेस कितनी हो जाएगी फिर T प्लस T 2T हो जाएगी ना, एक के ऊपर एक आप रखते चले जाओगे तो थिकनेस कितनी हो जाएगी 2T 3T 4T 5T, ऐसे नहीं हो जाएगी थिकनेस, जिससे तो इंक्रीज होती जाएगी। हाँ इंक्रीज होती जैसे जाएगी, रखते जाओगे वैसे बढ़ जाएगी।
हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएटेड लीफ और फुल लेंथ लीफ दोनों को करके सोचिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरी वाली जो फुल लेंथ लीफ है, दूसरी वाली जो फुल लेंथ लीफ है, उसको हम इस वाली व्यू में उसका आधा पार्ट को ऊपर अटैच कर रहे हैं, उस फुल लेंथ लीफ को दो पार्ट में काट दिया। जैसे ये फुल लेंथ लीफ है, इसकी विड्थ कितनी है, b, इसको दो पार्ट में काट दिया, तो ऊपर के पार्ट की विड्थ क्या हुई, b/2, नीचे के पार्ट की विड्थ क्या हुई, b/2। ऊपर का पार्ट ऊपर अटैच कर दिया, नीचे का पार्ट नीचे अटैच कर दिया, ऊपर का पार्ट ऊपर अटैच कर दिया, नीचे का पार्ट नीचे अटैच कर दिया। तो विड्थ कितनी हो गई, b + b/2 + b/2, तो टोटल विड्थ कितनी हो गई, 2b। लेकिन थिकनेस कितनी रही, थिकनेस तो t ही रही, थिकनेस तो, हाँ थिकनेस t ही रही। विड्थ हमने अगल बगल लगा के सोचा है ना, एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो उसकी थिकनेस कितनी हो गई, b/2। अब तीसरी फुल लेंथ लीफ आई, उसको भी दो पार्ट में काटा, ऊपर की विड्थ b/2, नीचे की विड्थ b/2, फिर से अटैच कर दिया, b/2, नीचे भी अटैच कर दिया, कर दिया। अब सारी फुल लेंथ लगाने के बाद ये टोटल विड्थ कितनी हो गई, जब दो फुल लेंथ है तो 2b, 3 फुल लेंथ है 3b, और nf है तो NFB मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में विड्थ को लिया था nfb और थिकनेस को t ही लिया था, थिकनेस को हमने t ही लिया था। ये बात समझ में आ गई। अब ग्रेजुएटेड पे बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब ग्रेजुएटेड पे देखिए, ग्रेजुएटेड में सबसे पहले कौन सी लीफ है, मास्टर लीफ। सबसे पहले कौन सी है, मास्टर लीफ। मास्टर लीफ की थिकनेस क्या है, t, थिकनेस तो सबकी t है। फोर्स कितना आ रहा है, pg। इस व्यू में आपको क्या दिखाई दे रहा है, लेंथ और थिकनेस, लेंथ और थिकनेस। एक व्यू दूसरा बनाया, उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, लेंथ और विड्थ, मास्टर लीफ की विड्थ। ये दूसरा व्यू जिसमें लेंथ दिख रही है और विड्थ दिख रही है, इसमें लेंथ दिख रही है और थिकनेस दिख रही है, ठीक है। अब मास्टर लीफ के नीचे कौन है, फुल लेंथ तो हमने एनालिसिस कर ली, फुल लेंथ को छोड़ दो, दो ग्रुप बना दिए, एक फुल लेंथ का अलग और एक दूसरा मास्टर और ग्रेजुएटेड का। तो मास्टर के नीचे कौन सी है, ग्रेजुएटेड। तो ग्रेजुएटेड जो लीफ है उसकी लेंथ थोड़ी कम है ना, उसकी लेंथ थोड़ी सी कम है। तो अभी ये पूरी लेंथ L है, तो उसकी लेंथ थोड़ी सी कम मान लेते हैं, यहां तक है, थोड़ी सी कम है उसकी लेंथ, है ना, थोड़ी सी कम है। तो उसकी लेंथ कम है ना, लेंथ रिड्यूस हो गई। उसकी जो विड्थ है वो कितनी है, b, उसको दो पार्ट में कट किया, ऊपर का पार्ट b/2, नीचे का पार्ट b/2, ऊपर वाला पार्ट ऊपर अटैच कर दिया, नीचे वाला पार्ट नीचे अटैच कर दिया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, लेंथ कम हो गई, ठीक है। ये पहली ग्रेजुएटेड लीफ के बारे में बताया। अब दूसरी ग्रेजुएटेड लीफ फिर थोड़ी छोटी हो गई, पहली वाली इतनी छोटी हो गई, दूसरी वाली फिर छोटी हो गई, है ना। अब दूसरी वाली को लिया, फिर उसके दो पार्ट करे लॉन्गिट्यूडनली, फिर b/2 ऊपर अटैच किया, नीचे अटैच किया, फिर एक और ले ली, एंड सो ऑन। ऐसा हम करते चले गए, सारी ग्रेजुएटेड लीफ को ऐसा करते। तो आपको कैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, अब आपको कैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, यदि मैं देखूं तो आपको कुछ ऐसा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर मिल रहा है। कैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर शेप नहीं मिल रहा है भाई, लेंथ कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो आपको एक तरह का ट्रायंगुलर अरेंजमेंट मिल रहा है, ठीक है। पहले कैसा अरेंजमेंट मिल रहा था, फुल लेंथ में रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, क्योंकि वहां लेंथ बराबर थी, यहां पे लेंथ छोटी 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 होती जा रही है, इसलिए आपको ट्रायंगुलर शेप मिल रही है, ठीक है। तो दिस इज वर्किंग एज ए ट्रायंगुलर कैंटिलीवर। ये है तो कैंटिलीवर, लेकिन इसका जो शेप है वो कैसा हो गया, ट्रायंगुलर टाइप का हो गया। तो ट्रायंगुलर कैंटिलीवर में, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन आता है, डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला आता है वो PL³ बाई
2EI आता है। रेक्टेंगुलर में PL क्यूब बाई 3EI, याद रखना, ये पूछते हैं। If the shape is triangular, then the deflection formula is PL cube by 2EI। 2 और 3 का चक्कर है बस, है ना, PL cube by 2EI और उसमें PL cube by 3EI। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये तो हो गया बेंडिंग स्ट्रेस इन ग्रेजुएटेड लीव्स, है ना। बस अब 2-3 मिनट में हम क्लास एंड करेंगे। दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस इन ग्रेजुएटेड लीव्स। और अब हम निकालेंगे डेल्टा जी। तो डेल्टा जी हमारा क्या होगा, PL क्यूब बाई 2EI। 2EI, P कितना हो जाएगा, PG। L लेंथ है ये, E is the Young's modulus, I is the moment of inertia। वैल्यूज रख दो, तो PG L क्यूब, ठीक है। ट्रायंगुलर की लेंथ कितनी मानी जाएगी, L ही मानी जाएगी, है ना। तो PG L क्यूब बाई 2E, I कितना माना जाएगा, BT क्यूब बाई 12। तो अब इसकी विड्थ कितनी है, NGB into D क्यूब डिवाइडेड बाय 12। 2 6 जा, ये 6 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो फाइनली आपको मिल जाएगा सर वो दिख नहीं रहा है। PGL क्यूब डिवाइडेड बाय E NG BT क्यूब। तो देखो उसका डिफ्लेक्शन में क्या आया था, 4, उसके डिफ्लेक्शन में यहाँ 4 आया था, और इसके डिफ्लेक्शन में यहाँ पे 6 आया। बता सकते हो किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है, किसका डिफ्लेक्शन कम है? सर ये दिख नहीं रहा है, ये वाला पार्ट दोनों ही नहीं। दोबारा से देखिए, डेल्टा जी इज PG L क्यूब डिवाइडेड बाय 2EI। सो इट इज PG L क्यूब 2E, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया NGB into T क्यूब डिवाइडेड बाय 12। 2 6 का 12, 6 ऊपर, so it is 6 PG L cube divided by E NG BT cube। This is the formula for delta G। ठीक है, डेल्टा F का था 4 PF L cube divided by E NF BT cube। कंपेयर करो डेल्टा F को डेल्टा G को, बताओ कौन ज्यादा है कौन कम। देखो BT क्यूब इसमें, BT क्यूब इसमें, उसमें 4 का फैक्टर, इसमें 6 का फैक्टर, उसमें PF इसमें PG, अंतर है ना, उसमें NF इसमें NG। ठीक है, कौन ज्यादा होना चाहिए कौन कम होना चाहिए, एनी आइडिया? ऊपर वाला होना चाहिए सर। ऊपर वाला ज्यादा होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि दोनों बराबर होने चाहिए। कारण लीफ स्प्रिंग एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। क्या ऐसा होना चाहिए कि एक स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन ज्यादा हो और एक में कम हो? सारी लीफ्स में बराबरी तो होना चाहिए, बिकॉज इट इज ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। किसी ट्रक में, बस में लगा हुआ है तो फोर्स की वजह से सारी लीफ्स में डिफ्लेक्शन तो बराबर ही होना चाहिए, नहीं तो सब अलग होने से उनमें तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, है ना, है ना। सो फ्रॉम दिस कंसेप्ट वी कैन इक्वेट डेल्टा F इक्वल टू डेल्टा G। ठीक है, हम इक्वेट कर सकते हैं। तो अब इक्वेट हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, टाइम इज होने वाला है, तो फिर इसके आगे लेंगे, है ना। थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, एक क्लास और लगेगी, उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, देन आवर लीफ स्प्रिंग पार्ट विल बी फिनिश्ड। ठीक है, तो हम करने क्या वाले हैं, इक्वेट करेंगे, कुछ रिलेशनशिप आएगी, फिर हम ये देखेंगे कौन सी स्प्रिंग में ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है। अच्छा बताओ कौन सी में ज्यादा होगा स्ट्रेस, फुल लेंथ में ज्यादा होगा या मास्टर में ज्यादा होगा या ग्रेजुएटेड में ज्यादा होगा? स्ट्रेस किस में ज्यादा होना चाहिए या होगा, क्या आपको लगता है, एनी आइडिया? सर फुल लेंथ में होना चाहिए सर ज्यादा। फुल लेंथ में देखो, फुल लेंथ की लेंथ सबसे ज्यादा है, ग्रेजुएटेड की लेंथ शॉर्ट में होगा सर, शॉर्ट में। ग्रेजुएटेड में ज्यादा होना चाहिए, है क्योंकि उसकी लेंथ कम है तो उसका एरिया वॉल्यूम कम है, एरिया कम होने से स्ट्रेस, ऐसा लगता है। कंसेप्ट तो सही है आपका, लेकिन जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि उल्टा होता है। ग्रेजुएटेड में स्ट्रेस ज्यादा आएगा, ग्रेजुएटेड में स्ट्रेस कम आएगा, और फुल लेंथ में स्ट्रेस ज्यादा है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। तो वो हम अब अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। बिल्कुल उल्टा होगा, कैलकुलेशन से साफ साफ हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम अब यहीं एंड कर देते हैं। यस ओके सर, थैंक यू सर। कर दो। बल्लू बदमाश है सर।
ठीक है, तो क्या मैं एंड कर सकता हूँ क्लास? मैं चैट देख लूं जरा। कुछ दिख नहीं रहा है साइड में। स्क्रीनशॉट ले लें 1 मिनट अगर आप साइड हो। अच्छा, ये तो जब ही लिखा होगा, आप तो बाद में तो दिख ही गया होगा। ठीक है, सर स्क्रीनशॉट ले लूं अगर आप 1 मिनट हाँ साइड ले हो। लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।